Hello and good morning. Hello and good afternoon to all my dear students. It's afternoon, right? So welcome in the class of economics. In our previous class, we have discussed chapter number 2 of micro, right? We were discussing chapter number 2. We have discussed the topic consumer equilibrium by cardinal approach in case of single commodity. When we are consuming only one commodity, the consumer equilibrium basically depends upon two things: price of a commodity and marginal utility of the commodity. Price of commodity and the marginal utility of that commodity. Right, now have a look. Price of a commodity will remain constant. You have to keep the price of commodity as constant. You can't change it. And marginal utility, we know it decreases with rise in consumption. When we increase more and more consumption of any commodity, the marginal utility tends to decrease. Now what we are supposed to do? We have to compare the marginal utility, that is satisfaction, from sacrifice. Px is the sacrifice made on commodity on behalf of consumer, जो वो pay करके आ रहा है. And MUX is the satisfaction which the consumer is receiving. The consumer will continue with the consumption only when his satisfaction is more than sacrifice. Have a look. जब वो यहाँ रहता है इन दो यूनिट्स पे, his satisfaction from commodity X is more than the sacrifice, right? ये रुपीज में एक्सप्रेस्ड है. MUM को हमने 1 अज्यूम करके आगे का सोल्यूशन किया है. आप तो ये देख लीजिए कि ये जो पार्ट है, this is MUX upon MUM. Satisfaction in terms of rupee, and this price is sacrifice. So from first unit of commodity, my satisfaction is 20 utils, whereas I'm sacrificing only 10 rupees. So my satisfaction is more than my sacrifice. I will continue the consumption. In second also, my satisfaction is more than my sacrifice. I will continue to purchase the third unit. When I reach the third unit, my sacrifice and satisfaction will become equal. Here I am getting 10 util as satisfaction and I am sacrificing rupees 10. जितना मिला उतना sacrifice कर दिया. So I will stop here. This is the point of consumer equilibrium. MUX अपॉन में MUM भी है, नहीं लिखा हुआ क्योंकि हमने 1 अज्यूम कर लिया है. ठीक है, फॉर्मूले में MUM भी है. बस आगे और आगे बढ़ेंगे तो वापस सेटिस्फेक्शन विल बी लेस देन सैक्रिफाइस, तो हम कंजप्शन करना प्रेफर नहीं करेंगे. व्हाइट बोर्ड शेयर करके भी आपको बता रही हूं मैं, देखें जरा ध्यान से. हैव अ लुक ऑन स्क्रीन. एक और टेबल आपकी इजीनेस के लिए बना के आपको बता रही हूँ. Suppose we are taking units 1, 2, 3, 4, 5. अब आपके लिए कुछ भी MUX ले लेते हैं आपके कंफर्ट के लिए. मैंने ले लिया 15. हमें पता है MUX डिक्रीज होता है. 15 के बाद 10, 6, 3, 0. डिक्रीज होते होते 0 भी होता है. अब प्राइस ले लीजिए. बस आपको ध्यान रखना है प्राइस का कोई एक ऐसा वेरिएबल लेना जो MUX में प्रेजेंट हो, क्योंकि हमें एक पॉइंट पे उसको इक्वल करना है. मैं 10 भी ले सकती हूँ, 6 भी ले सकती हूँ. पूरी टेबल में प्राइस कांस्टेंट रहेगी. मैंने प्राइस ले लिया 6, तो 6, 6, 6 कांस्टेंट. नाउ हैव अ लुक. व्हाइल कंज्यूमिंग द फर्स्ट यूनिट, मेरा सेटिस्फेक्शन मेरे सेक्रीफाइस से ज्यादा है. Satisfaction is more than sacrifice, so consumer will be purchasing more. Second unit पे भी same, satisfaction is more than sacrifice, I will purchase more. Third पे satisfaction is equal to sacrifice, so this will be the point of consumer equilibrium. अगर मैं third point को cross करके fourth पे आती हूँ तो मेरा satisfaction हो जाएगा कम और sacrifice हो जाएगा ज्यादा, which means मुझे loss हो जाएगा और मैं आगे आना prefer नहीं करूंगी. तो ये आपको मैंने बता दिया है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन. व्हेन अ कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग ओनली वन कमोडिटी, और वी कैन से दैट व्हेन अ कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग अ सिंगल कमोडिटी. कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आता है वो वाला सारा पोर्शन हमने डिस्कस कर लिया है. अभी आगे देखिए. ये हमने डायग्राम समझ लिया, टेबल समझ ली, डायग्राम देखिए.
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ गुड एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा ना कर्व, आपने पढ़ा है ये MUX वाला लॉ ऑफ DMU में, MU फॉल हो रहा है तो MUX ऐसा कर्व बनता है, MUX वाली लाइन सबको समझ आई होगी। ये पॉइंट ऑफ सैटिटी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। द पॉइंट वेयर MUX इज 0 इज नोन एज पॉइंट ऑफ सैटिटी। MCQ में आ सकता है बेटा जी, आपको ये डायग्राम बना के दे सकते हैं और आपको कह सकते हैं आइडेंटिफाई द पॉइंट E, यहाँ पे EFGH कुछ भी लिख सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दिस इज द पॉइंट ऑफ सैटिटी। अब ये वाली लाइन देखिए, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, तो ये PX है, मैंने Y एक्सिस पे दोनों को ले लिया है MUX और PX को, तो ये PX की लाइन है स्ट्रेट लाइन। अब एक पॉइंट जहाँ MUX और PX बराबर है उसे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहेंगे। इस पॉइंट से ऊपर तो कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है एज कंपेयर टू प्राइस, और इसके नीचे सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है एज कंपेयर टू प्राइस, तो वो पॉइंट E पे आके स्टॉप हो जाएगा। आपको टेबल से मैच करके डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, उलझने की जरूरत नहीं है, आप तो बहुत आराम से इजी गोइंग चल सकते हैं, ठीक है, आपको कहीं भी टेंशन नहीं लेनी है। आगे देखिए, ये आ गया कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम, कौन सा फॉर्मूला यूज किया, MUX अपॉन MUM डिवाइडेड बाय PX, तो MUM हमने 1 लिया है तो MUX इज इक्वल्स टू PX पे हमारा इक्विलिब्रियम आया। ये भी फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUM 25। ऐसे में हमने MUX भी हम कहाँ रुके, गिवन टेबल में देखिए जरा 10 पे, अपॉन PX 10 इज इक्वल्स टू MUM दैट इज 1, तो दोनों फॉर्मूले हमारे वर्क करते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम व्हेन अ कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग 2 कमोडिटीज। अगर कंज्यूमर 2 कमोडिटीज कंज्यूम करता है तो कहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आता है, ये हमें समझना है। तो देखें जरा कहाँ आता है इक्विलिब्रियम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। Have a look everyone. Now, suppose a consumer is consuming 2 goods. Good X भी ले रहा है, गुड Y भी ले रहा है। अब हमें समझना है इस कंज्यूमर के लिए इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा। तो पहली बात आपको ध्यान रखनी है, गुड X ले रहा है तो आपको PX भी लेना पड़ेगा कुछ वैल्यू, और आपको कुछ वैल्यू लेनी पड़ेगी PY की भी, यानी गुड Y की प्राइस भी लेनी पड़ेगी, गुड X की प्राइस भी लेनी पड़ेगी। हम स्टडी को इजी रखने के लिए ये अज्यूम कर लेंगे कि X और Y दोनों की सेम ही प्राइस है, हम PX भी ₹1 अज्यूम करेंगे और PY को भी ₹1 अज्यूम करेंगे, यानी X कमोडिटी भी ₹1 पे सेल हो रही है और Y कमोडिटी भी ₹1 की सेल हो रही है। अब आपको लेनी पड़ेगी कंज्यूमर की इनकम। 1 कमोडिटी में तो हमें इनकम लेनी जरूरी नहीं थी, इकोनॉमिक्स में इनकम को Y से डिनोट करते हैं, Y का मतलब है इनकम ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। तो कंज्यूमर की कुछ भी इनकम अज्यूम कर लीजिए, स्टडी इजी रखने के लिए आप 2 का कोई भी मल्टीपल ले लीजिए, मैं 8 ले सकती हूँ, 10 ले सकती हूँ, 12 ले सकती हूँ, बस इतना ही लीजिए, इससे छोटी या बड़ी वैल्यू मत लीजिए, क्योंकि टेबल आपको खुद बनानी है तो मैं टेबल को आपको ट्रिक वाइज बनाना भी सिखा दूँ। 2 का मल्टीपल ले लीजिए, तो मैंने इनकम को ले लिया है ₹10, स्टडी को इजी रखने के लिए आपको इनकम अज्यूम करनी है। फिर आपने PX अज्यूम कर लिया है ₹1 ही लेना है, PY को भी अज्यूम कर लिया है आपने ₹1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको पहली बात ध्यान रखनी है, कंज्यूमर इज हैविंग ₹10 बाय विच ही कैन परचेज गुड X एज वेल एज गुड Y। इन टोटल वो कितना परचेज कर सकता है, 10 यूनिट्स। गुड X और गुड Y की मिला के वो हाईएस्ट कितनी यूनिट्स परचेज कर पाएगा, 10 यूनिट्स। Y क्योंकि दोनों की प्राइस 1 है, इनकम को प्राइस से डिवाइड करके देखिए तो 10 यूनिट्स वो इन टोटल परचेज कर पाएगा। अब किसी बच्चे को यहाँ तक कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइए। नाउ when a consumer is spending his money on 2 goods, इक्विलिब्रियम के लिए ये जरूरी है कि टोटल मनी इनकम स्पेंड हो जानी चाहिए, यानी if a consumer is having ₹10,
then he is required to spend his entire income on these two commodities. ये equilibrium का एक theoretical assumption है that if you are studying consumer equilibrium in case of two commodities, a consumer is supposed to spend the entire money income on these two commodities. Now what you are supposed to do? You have to draw the marginal utility schedules of these two goods. Good X and good Y, right? We are having two goods, good X and good Y. देखिए मैं आपके सामने एक शेड्यूल बना रही हूँ, बहुत इजी सा. यहाँ पे क्वांटिटी है, ये X वाली बात चल रही है और ये सारी Y वाली बात चल रही है. क्वांटिटी के नेक्स्ट कॉलम में MUX है, मींस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X, और इधर है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड Y. ठीक है, अब आप देखिए मैं ब्लैक से गुड X लिखती हूँ. 1 2 3 4 7 तक लिख दिए. गुड Y लिख देती हूँ सेम 7 तक. अब कुछ भी मार्जिनल यूटिलिटीज लिख दीजिए, बस डिक्रीजिंग होनी चाहिए. मार्जिनल यूटिलिटी शुड फॉल विद राइज इन कंजप्शन. 2 का मल्टीपल लेके ही चलती हूँ. 20 से स्टार्ट करते हूँ. 20, 18, 16, 14, 12 एंड 10. मैंने क्या कर दिया? अच्छा आगे एक और आएगा 8. यस, ये मैंने 2 का मल्टीपल लेके डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटीज शो कर दिया. आपको पता है मार्जिनल यूटिलिटीज डिक्रीजिंग होती है, राइट? व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर ऑफ अ कमोडिटी द मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्ट्स फॉलिंग. अब इसी तरीके से गुड Y की लिख देते हो, इसकी भी डिक्रीज होगी. मैंने 16 से स्टार्ट किया. 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4. नाउ you as a rational consumer have to tell me कि अगर आपके पास 10 रुपीज है, आप अपना फर्स्ट रुपी कौन से गुड पे लगाओगे? गुड X पे कि गुड Y पे? जल्दी से अनम्यूट करके बताओ. गुड X की फर्स्ट यूनिट आपको 20 यूटिल का सेटिस्फेक्शन दे रही है, whereas the first unit of good Y is giving you a satisfaction of 16 util. Yes Pankaj. गुड X बाय करें. गुड X परचेज करेंगे. Everyone will purchase good X. Why? Because good X is offering me more satisfaction as compared to good Y. तो मैंने अपना फर्स्ट रुपी यहाँ लगा दिया, मैंने फर्स्ट यूनिट ले ली गुड X की. चलिए बताइए सेकेंड यूनिट किसकी लेना पसंद करोगे? सेकेंड यूनिट गुड X. डेफिनेटली गुड X. गुड X is giving me 18 util satisfaction. गुड Y तो मुझे अभी तक मैंने गुड Y खरीदा ही नहीं है, तो अगर मैं गुड Y पे आती हूँ तो 16 का सेटिस्फेक्शन मिलता. थर्ड बताइए, अपना थर्ड रुपी आप कहाँ लगाना चाहेंगे? गुड X. गुड X पे मैंने थर्ड रुपी लगा दिया. अब बहुत ध्यान से आंसर देना बेटा. आपके 3 रुपए लग गए, आपने फर्स्ट सेकेंड और थर्ड रुपी गुड X पे लगा दिया. गुड Y अभी तक परचेज ही नहीं किया है, यानी अगर मैं अब गुड Y लेती हूँ तो गुड Y की वो फर्स्ट यूनिट होगी. अब आप अपना फोर्थ रुपी कहाँ लगाएंगे? गुड Y पे. कैन एनीवन टेल मी द रीजन? बताइए, सोचिए. क्योंकि मैं गुड X खरीदती हूँ तो मुझे 14 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिलता है. अगर मैं गुड Y परचेज करती हूँ तो मुझे 16 का सेटिस्फेक्शन मिलेगा. Y की तो फर्स्ट ही यूनिट है, Y को तो अभी तक हमने खरीदा ही नहीं है, तो मैं मेरा फोर्थ रुपी लगा दूंगी यहाँ पे, यानी गुड Y पे. फिफ्थ रुपी कहीं भी लगा दीजिए, गुड X की फोर्थ यूनिट ले लीजिए तो भी वही बात है, गुड Y की सेकंड ले लीजिए तो भी वही. मैंने फिफ्थ यहाँ लगा दिया. सिक्स्थ रुपी कहाँ लगाओगे? सोच के बताइए. सिक्स्थ रुपी मैंने अभी तक X की 3 यूनिट्स ली है और Y की 2 यूनिट्स ली है. गुड X. अच्छे से देखिए ध्यान से. अगर मैं Y की थर्ड यूनिट पे आती हूँ तो ये मुझे केवल 12 यूटिल का सेटिस्फेक्शन देता है, बट गुड X इज गिविंग मी द सेटिस्फेक्शन ऑफ 14 यूटिल. तो मैं गुड X परचेज करना चाहूंगी, तो मैंने नेक्स्ट रुपी यहाँ लगाया.
अब नेक्स्ट कहीं भी लगा दो, मैंने यहाँ लगा दिया तो उसके बाद वाला यहाँ आ जाएगा क्योंकि सेटिस्फेक्शन इज मोर हियर, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ और रिमेनिंग नेक्स्ट यहाँ। अब इसी को एक बार अच्छे से दोबारा आपको टेबल बना के एक्सप्लेन करती हूँ, हैव अ लुक एकदम आराम से। दिस टाइम आई एम राइटिंग द यूनिट्स फॉर कॉमन। कॉमन लिखती हूँ आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा इजी रहेगा। देखिए वो पहली बार समझाना था इसलिए मैंने यूनिट्स को सेपरेट सेपरेट लिखा। अभी ये देखिएगा, यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 7। मार्जिनल यूटिलिटी ये गुड एक्स की लिख रही हूँ और ये गुड वाई की लिख रही हूँ, ठीक है। गुड एक्स की देखिए 20 18 16, 2 का मल्टीपल लेना है, रिवर्स करते जाना है। 14 10 8, अच्छा 12 रह गया, 12 मिस हो गया है, 12 वापस लिख देती हूँ। 12 10 एंड 8 इधर लिखती हूँ 16 14 12 10 8 6 4। चलिए अब मैं ब्लू मार्कर से यूनिट्स बता रही हूँ, ठीक है। अब आपके पास, आप याद रखिएगा सभी बच्चे, दैट यू आर हैविंग 10 रुपीज। कितने रुपीज है बेटा आप लोगों के पास? 10 रुपीज है। फर्स्ट रुपी किस पे खर्च करोगे, जल्दी से बता दीजिए मुझे। अपना फर्स्ट रुपी आप कौन सी गुड चीज पे एक्स। लगाओगे? गुड एक्स। सभी बच्चे, तो मैंने मेरा फर्स्ट रुपी लगा दिया गुड एक्स पे। चलिए सेकेंड रुपी, सेकेंड रुपी किस पे लगाओगे बेटा? अगर वाई पे गुड लगाते एक्स। हो तो 16 का सेटिस्फेक्शन, एक्स पे 18, बिल्कुल गुड एक्स। थर्ड रुपी, गुड एक्स। थर्ड भी गुड एक्स पे क्योंकि 16 का सेटिस्फेक्शन। अब देखिए बेटा यहां तक तो इजीली चलता है। अब अगर मैं गुड एक्स लेती हूँ तो इट विल ऑफर मी अ सेटिस्फेक्शन ऑफ 14 यूटिल, वेयर एज जो गुड वाई अभी तक मैंने नहीं लिया है 1 रुपी का ही है, वो मुझे सेटिस्फेक्शन देगा 16 यूटिल का। तो बताइए बेटा क्या परचेज करूं, एक्स और वाई? वाई। वाई। तो यहाँ पे मेरा 4th रुपी लग जाएगा। 5th रुपी बताइए, कहीं भी लगा दो एक ही बात है। वाई की सेकेंड यूनिट लोगे तो भी 14 का सेटिस्फेक्शन, एक्स की फोर्थ लोगे तो भी 14 का। तो मैंने मेरा 5th रुपी यहाँ लगा दिया। अब 6th रुपी बताइए कहाँ लगाओ? गुड एक्स और गुड वाई, कहाँ ज्यादा सेटिस्फेक्शन नजर आ रहा है? आप हाई Good वाले X। कॉलम्स को देखिए, गुड एक्स पे आ रहा है तो मैंने यहाँ पे 6th रुपी लगाया। 7th कहीं भी लगा दो एक ही बात है, यहाँ लगा दिया। अब 8th रुपी बताइए कहाँ लगाऊं? गुड वाई। गुड वाई, Good Y. बिकॉज गुड एक्स विल गिव मी ओनली अ सेटिस्फेक्शन ऑफ 10 यूटिल, गुड वाई पे 12 मिल रहा है तो मैंने 8th यहाँ लगा दिया। चलो 8 के बाद 9 कहाँ लगाऊं? मैम कहीं भी लगा दूं। कहीं भी लगा दो एक ही बात है, तो 9th यहाँ लगा दिया। 10th रुपी कहाँ लगाऊं? एक्स। एक्स पे। और गुड एक्स। 11th? मैम कहीं भी लगा दो गुड वाई गुड एक्स में। 11th रुपी कहाँ लगाऊं? मैम गुड वाई। गुड वाई पे लगाऊं पक्का? यस मैम। यस मैम। कोई और कुछ बताना चाहता है? 10 ही रुपया मैम। 10 ही रुपी है, वेरी गुड तुषार। 11th रुपी लाओगे कहाँ से? मम्मी तो मना कर देगी कि 10 ही चॉकलेट्स परचेज करनी थी, आपके पास तो टोटल 10 ही रुपीज थे। यहाँ आपकी अलर्टनेस चेक हुई। अब मुझे बताओ आपने गुड एक्स की कितनी यूनिट्स परचेज की है टोटल? यूनिट्स देखनी है, मैं यूटिलिटी नहीं बोल रही। गुड एक्स की कितनी यूनिट्स ली हमने? 6. 6 यूनिट्स। 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। और गुड वाई की कितनी यूनिट्स ली है? 4. 4 यूनिट्स। क्या आपके 10 रुपीज पूरे यहाँ पे स्पेंड हो गए? यस मैम। हो गए ना। और जहां आप स्टॉप हुए हो आप गुड एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी देखो और गुड वाई की मार्जिनल यूटिलिटी देखो।
ये एक बार ऑब्जर्व करके छोड़ दो, अभी मैं आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रही हूँ। कर लिया ऑब्जर्व सभी बच्चों ने? 10 और 10 आ रही है। मार्जिनल यूटिलिटीज वेयर आई हैव स्टॉप। अब देखिए बेटा, टू कमोडिटीज में इक्विलिब्रियम के दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों कंडीशंस होनी जरूरी है। नंबर 1, MUX upon PX should be equal to MUY upon PY। मेरी अभी गिवन टेबल में MUX, जहां मैं स्टॉप हुई थी, आ रहा था 10 और PX मैंने लिया था 1। उसी टेबल में MUY भी आ रहा था 10 और PY मैंने लिया था 1। तो कंडीशन नंबर 1 तो पूरी हो रही है। MUX upon PX should be equal to MUY upon PY। तो हमारे सिचुएशन में आ रहा था। सेकेंड इक्वेशन ध्यान से देखिएगा, प्राइस ऑफ गुड X इंटू क्वांटिटी ऑफ गुड X प्लस प्राइस ऑफ गुड Y give me a second, yes, price of good Y into quantity of good Y should be equal to total income of consumer। कंज्यूमर के पास कितने रुपए थे बेटा, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, आपके पास कितने रुपीस थे टोटल? 10 थे क्या? गुड एक्स की कितनी प्राइस थी? 1 रुपी। आपने उसकी कितनी क्वांटिटी परचेज की? 6 यूनिट्स। प्लस गुड वाई की कितनी प्राइस थी? 1 रुपी। आपने कितनी क्वांटिटी परचेज की? 4 यूनिट्स। तो ये इक्वेशन क्रॉस चेक करोगे तो आपको पता चलेगा, यस, कंज्यूमर हैज स्पेंट द एंटायर इनकम ऑन दीज टू गुड्स, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कंज्यूमर इज एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। Px डॉट Qx बता रहा है कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर को ऑन गुड एक्स, ये गुड एक्स पे किया हुआ एक्सपेंडिचर है। प्राइस इनटू क्वांटिटी, कितने रुपीस लगा दिए मैंने गुड एक्स पे? 6 रुपीस। और ये बता रहा है गुड वाई पे किया गया एक्सपेंडिचर, कितने रुपीस लगा दिए मैंने? 4 रुपीस। ये मेरा एक्सपेंडिचर मिलके मेरी मनी इनकम के इक्वल होना चाहिए, यानी 10 रुपीस के इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है तो मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सही आया, अगर इक्वल नहीं है इट मींस आई हैव डन अ मिस्टेक। तो आपको मैंने बता दिया है, टू कमोडिटीज के केस में यू हैव टू कीप इन माइंड टू फॉर्मूलाज। नंबर 1, द मार्जिनल यूटिलिटी फॉर गुड एक्स upon price of good X should be equal to the ratio of marginal utility for good Y and price of Y, right? तो आपको एक टेबल बनानी है। टेबल बनाने के लिए मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे टेबल बनाएंगे, इसको इक्वल करके देखेंगे और ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब इसी टॉपिक को और इलैबोरेट करेंगे कल की क्लास में। कार्डिनल अप्रोच पूरा फिनिश करेंगे हम कल की क्लास में और ऑर्डिनल अप्रोच को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? कार्डिनल अप्रोच अभी काफी बड़ा कंसेप्ट है, तो ये कार्डिनल अप्रोच, हाँ जी, तो ये कार्डिनल अप्रोच जो है ये कल की क्लास में फिनिश कर देंगे, ठीक है? ये बुक से रीडिंग करके ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, ये वाला मेन फॉर्मूला ये है, MUX अपॉन PX इक्वल्स MUY अपॉन PI। कब होता है ये सब कल बताऊंगी, अच्छे से समझेंगे कल इसको। बुक वाली टेबल भी बना सकते हैं और जो मैंने बताई है वो भी ट्रिक वाइज आपको टेबल बनाना सिखा दूंगी और कल हम वाइंड अप कर देंगे इस पोर्शन को, नेक्स्ट क्लास में शुरू कर देंगे नेक्स्ट पोर्शन। ओके एवरीवन, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।